So hello guys, welcome back to the channel. In today's video we are gonna talk about like January intake or the September intake, which intake is better and good for you. In today's video, like I will discuss some points which are like pros with the Jan intake, some are pros with the September intake, and I believe after watching this video you will have an idea of like which intake will be good for you. And let's start the video. And before that, I will just request everyone to please keep subscribing my channel so that I can reach to the many of the users like you, so they can make the better or the right choice or the right decision after watching my video. So let's dig into the video. So first of all, I have made some points. On the basis of those points, I'm gonna discuss about the Jan intake and the September intake. As you have roughly idea, like the September intake is the biggest intake in the UK. So most probably, if you are lucky or you are eligible for the September intake, please go with the September intake, because I'm gonna like discuss some points. Most important point for the September intake is that the jobs availability, because of the we have the in the September intake we have the Christmas, we have the vacations for the New Year. So that's the main point. वहाँ पे आपको बहुत सारी vacations मिलती है September intake वालों के लिए, जैसे कि Christmas हो गया या New Year हो गया, तो उस टाइम पे आपको काफ़ी सारी vacation मिलती है in compare with the Jan intake. So in the compare of the jobs, so September intake में job availability ज़्यादा होती है, क्योंकि students काफ़ी सारे आते हैं और jobs भी available होती है उस टाइम पे as because of the vacations. और जितनी ज़्यादा vacations, that means उतनी ज़्यादा jobs availability, क्योंकि उस टाइम पे Amazon और जितने भी यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह होते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स प्लेस होते हैं, तो जितने ज़्यादा ऑर्डर्स वगैरह प्लेस होंगे उतनी ज़्यादा जॉब्स वैकेंसी वगैरह क्रिएट होंगी. सो दैट्स द वन पॉइंट कि सितंबर इंटेक में जॉब्स अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है. आई मीन आप इनकम्स वगैरह ज़्यादा कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी हैव द प्रायोरिटी इन द सितंबर इंटेक, लाइक दे गिव द प्रायोरिटी ऑफ द सम कोर्सेज which is available only in the September intake. As I have mentioned in my last video, the previous video, that I wanted to apply for the masters in data science, but the course was not available in the Jan intake, so I have to like apply for the MSc in applied data science. So that's the reason I'm telling you, in case like you are able to get the September intake, please go with it, because some courses are not available in the Jan intake or the May intake. वैसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में intake प्रोवाइड नहीं करती हैं, बट Jan intake में काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं. सो मोस्ट ऑफ द कोर्सेज आर अवेलेबल इन द September intake, so please go with the September intake. वैसे Jan intake भी बुरा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज और द प्रेफरेंसेज, इफ यू आर हैव द चांस, और आपको चांस मिलता है यूनिवर्सिटी September intake में एडमिशन आपको दे रही है, तो प्लीज गो अहेड विद द September intake. नेक्स्ट पॉइंट इज द इंटर्नशिप, ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड द प्लेसमेंट्स ऑप्शंस. सो for the September intake, most of the companies hire the students for their placement and the graduate program or the internship or the placements. So in the September intake के लिए बहुत सारी placement, internship या फिर graduate programs available होते हैं. In that because बहुत सारी जो companies है, जो काफ़ी सारी जो MNCs वगैरह होती हैं, so vacancies जो है उस available होती है, या job placement हो गया, या internship हो गया, या graduate programs हो गए, तो ये सारी job opportunity September intake वालों के लिए ज़्यादा available होती है, because there is a cycle which like available from September to September. और उस बैच में मतलब September intake वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि जो जॉब ग्रेजुएट प्रोग्राम होते हैं या प्लेसमेंट होती है या इंटर्नशिप होती है, दैट इज़ अवेलेबल फॉर द September intake मोस्टली. और ऐसा नहीं है कि मतलब Jan intake वाले अप्लाई नहीं कर सकते, दे आर एबल टू एलिजिबल और अप्लाई फॉर दैट, बट September intake वालों के लिए उस टाइम तक उनका सबमिशन या डिसर्टेशन या पूरा क्या बोलते हैं कोर्स या डिग्री पूरी फिनिश हो जाती है, तो दे आर एबल टू और एलिजिबल फॉर द फुल टाइम वर्क. तो इस वजह से उनको प्लेसमेंट के चांसेस या ग्रेजुएट प्रोग्राम में इंटर्नशिप वगैरह के लिए चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उनको प्रेफरेंस भी ज़्यादा दी जाए. एम्बर स्टूडेंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको काफ़ी सारे सिटीज़ में, जैसे कि इनके पास 16,000 प्रॉपर्टी लिस्टेड है, प्लस में 1 मिलियन बेड्स हैं, इंक्लूडिंग रूम, सिंगल रूम, डबल बेडरूम, इंश्योर्ड रूम्स, जो आपकी अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे वो आप रूम ले सकते हो. ईजी सर्च अवेलेबल है इनके पास, और काफ़ी सारी कन्वीनियंस और अकोमोडेशन फ्रेंडली है, जैसे कि स्टूडेंट फ्रेंडली हो गया, या कपल फ्रेंडली रूम्स हो गए, या फिर डबल बेडरूम, सिंगल बेडरूम, सारे तरीके के रूम्स अवेलेबल है. सेफ्टी और सिक्योरिटी वाइज तो ये काफ़ी सारी लिस्टिंग प्रोवाइड करते ही हैं आपको. प्लस में बेस्ट पार्ट है इसकी, जितनी भी प्रॉपर्टी इनके पास लिस्टेड है, ऑल आर द बिल इंक्लूसिव. सो आपको कोई भी हिडन चार्जेस या कुछ भी पे नहीं करना है, और एंड टू एंड स्टूडेंट सपोर्ट, आपको सारा पेपर वर्क, गारंटर, सारी कुछ सिक्योरिटी और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. तो प्लेसेस और फाइनलाइज करना है, कहाँ पे आप लोकेशन फाइनलाइज करके आप बुक कर सकते हो. फिर पेपर वर्क बहुत ईजी है इनका, और अकोमोडेशन बुक हो गई. सो इनकी अकोमोडेशन में डाइनिंग हॉल, फिटनेस होम, जिम, गेमिंग रूम, पार्किंग
स्पेस, स्टडी रूम, स्विमिंग पूल, ये सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। और स्टूडेंट का ट्रस्ट जो है बस स्टूडेंट पे काफ़ी ज़्यादा है। सो अभी अब मेरे लिंक से आप अगर बुक करते हो तो आपको 20 पाउंड का डिस्काउंट मिलेगा। सो मेक श्योर आप मेरे लिंक पे क्लिक करके ही बुकिंग करें ताकि आपको 20 पाउंड का डिस्काउंट मिले। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूँ फीस से रिलेटेड, सो आई बिलीव कि फीस आर सिमिलर, और बिकॉज क्या होता है ना कि यूनिवर्सिटी जो है इंक्रीज करती है फीस एवरी ईयर 3 to 5% मोस्ट ऑफ द टाइम इन द यूके। सो इन केस लाइक इफ यू आर कमिंग इन द जैन इनटेक, सो द फीस विल बी इंक्रीज्ड इन द सेप्टेम्बर इनटेक। इफ यू आर कमिंग इन द नेक्स्ट जैन इनटेक, then the fees will be increased 3 to 5% in the next year. So like I cannot say the fees will be maximum in the September intake or in the Jan intake, because it will be increasing 3 to 5% every year. So I cannot like differentiate which intake is better in terms of the fees, because it increases every year 3 to 5%. So it doesn't make any sense to making the comparison for the fees perspective. In case of the university, if you are asking which university is good and this university is good or not, or like placement available or not, so the thing is कि यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटी वेल रिकॉग्नाइज्ड है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। सो इन केस यू आर गेटिंग एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी, सो लाइक आप जा सकते हो। बट द थिंग इज फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, यू कैन कंसिडर कि आपकी फीस कम हो, आपको स्कॉलरशिप मैक्सिमम मिले। दोज आर दी 2 पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। और मेरे ख्याल से इन केस यू आर लाइक, हम सभी मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं राइट। सो इन केस अगर आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो ट्राई करना कि लो फीस यूनिवर्सिटी ट्राई करो, और लंदन साइड यूनिवर्सिटी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, और लाइक पार्ट टाइम भी आपको थोड़े जल्दी मिल सके। तो अगर क्लासेस की बात करें तो देखो जैन इनटेक में भी क्लासेस, मेरी क्लासेस तो फेस टू फेस काफ़ी सारी हुई हैं। फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा इतना ज़्यादा रश था कि मतलब मोस्ट ऑफ द क्लासेस वर फेस टू फेस, इवन ऑनलाइन भी था। तो आई कैनॉट कंपेयर इन द टर्म ऑफ लाइक क्लासेस की फेस टू फेस ज़्यादा जैन इनटेक में होती है या फेस सेप्टेम्बर इनटेक में होती है, बिकॉज इट डजंट मेक एनी सेंस टू मेक द कंपैरिजन इन द पर्सपेक्टिव ऑफ क्लासेस। फेस टू फेस ज़्यादा किस में होती है या ऑनलाइन किस में होती है, बिकॉज अभी तो कोविड का इतना ज़्यादा वो नहीं है। बट आई डोंट नो अबाउट द फ्यूचर कि क्या पॉसिबिलिटी है कोविड इन केसेस विल बी राइजिंग और नॉट। तो इन दैट केस मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर सकता। बट हाँ, मेरे ख्याल से मेरी जैन इनटेक में भी काफ़ी सारी क्लासेस हुई हैं फर्स्ट सेमेस्टर में फेस टू फेस, और ऑनलाइन भी अवेलेबल थी। इट वॉज अवेलेबल ऑन द बोथ मोड्स। In case you are living far away from the university, you can attend it online or through the Zoom, or in case you are living around the university, you can attend face to face. Or I have talked to many of the people who came in the October or the September intake. They said like they were also had the lot of classes face to face and the online as well. So I don't think यहाँ पे फिर classes के related comparison का कोई सेंस नहीं बनता। So let's discuss the next point, that is the visa duration. I believe I started my course at Jan 2022 and my visa valid till May 23. So it is around like 14 to 15 months. 1 साल 5 महीने के लिए मेरा वीजा वैलिड है। तो PRP वैलिड है, दैट इज वीजा वैलिड है यूके में रहने के लिए। और आई थिंक इट इज सिमिलर टू द सितंबर इनटेक एज वेल, क्योंकि मैंने लास्ट अभी किसी से बात की थी अक्टूबर या सितंबर इनटेक का MSc डेटा साइंस स्टूडेंट से। ही सेड कि उसका सितंबर से जो है वीजा या मार्च तक आई थिंक ही सेड। तो आई थिंक इन द टर्म्स ऑफ द वीजा ड्यूरेशन इट इज ऑल्सो सिमिलर टू बोथ ऑफ द इनटेक्स। तो इसमें मतलब आपको 1.5 साल तक का वीज़ा वैलिड होता है आपका अकॉर्डिंग टू द BRP। सो इसमें भी कोई कंपैरिजन करने का मेरा सेंस बनता नहीं है। सो ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं। होपफुली आपको मतलब डिफरेंसेस पता लगे होंगे विच इज़ गुड फॉर यू। यू कैन कंपेयर ऑल द पॉइंट्स, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डिसाइड वेयर यू वांट टू कम फॉर द सितंबर इनटेक और द जैन इनटेक। इन केस लाइक यू आर गेटिंग द चांस फॉर द सितंबर इनटेक, प्लीज गो अहेड विद इट। जैन इनटेक भी बुरा नहीं है, बट देयर आर सम प्रोज एंड कॉन्स। और वेकेशंस की मैंने बात की, आपको बताई दी है कि 3 to 4 मंथ्स सब में ही मेरे ख्याल से दोनों इंटेक्स में आपको वेकेशंस मिलता है। आई हैव नो क्लू अबाउट द सितंबर इंटेक हाउ और व्हेन यू गेट द वेकेशंस, बट आई कैन टेल यू द जैन इंटेक। जैन से मार्च तक की प्रॉपर क्लासेस थी, दैट इज द फर्स्ट टर्म। फिर हमें अप्रैल पूरा 1 मंथ का वेकेशंस था, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड आवर सेकेंड टर्म। तो उसमें भी हमारा मई, जून और जून तक क्लासेस थी। फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर तक हमारी 3 मंथ्स की वेकेशंस है, बट अनफॉर्चुनेटली वेकेशंस हमारी कैंसिल कर दी यूनिवर्सिटी ने फॉर द 2 मंथ्स। सितंबर और द अगस्त वी हैव द फुल टाइम परमिशन, 1 मंथ के लिए वैलिड है हमारा भी फुल टाइम वर्क परमिशन। एंड आफ्टर दैट सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 3 मंथ्स के लिए हमारा थर्ड टर्म स्टार्ट होगा, जिसमें कि हमें सिर्फ डिसर्टेशन सबमिट करनी होती है। एज आई ऑलरेडी मेंशन इन माई वीडियो दैट माई वीजा इज वैलिड टिल May 23, so I don't know like how
द वीज़ा इज़ गोइंग टू बी वर्क, और मुझे कैसे काम करना पड़ेगा फ्रॉम जैन टू मे, बिकॉज आई डोंट हैव एनी क्लासेस और कुछ भी नहीं है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड. सो आई एम नॉट श्योर लाइक आई कैन वर्क द फुल टाइम ऑन दोज वेकेशंस और दोज पीरियड फ्रॉम जैन टू मे 2023. सो आई होपफुली कि मैं यूनिवर्सिटी को मेल करूँगा एंड देन आई विल गेट टू नो कि मैं फुल टाइम वर्क कर सकता हूँ या नहीं कर सकता. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आपको मैंने कंपैरिजन बता दिया. नाउ यू कैन डिसाइड फ्रॉम योर ओन, यू मेक योर ओन डिसीजंस. Hopefully you will love the video. Thank you and keep subscribing. Thank you. Bye.